દેશ 70મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યું છે ત્યારે ભારતીય સેનાની ગોલ્ડન કટા ડિવિઝન દ્વારા નો યોર આર્મી થીમ પર 2 દિવસ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં જવાનોએ પોતાનું શૌર્ય પ્રદર્શિત કર્યું હતું। ગુજરાતની યુવા પેઢીને સૈનિક બનવા પ્રેરિત કરવા અને નવ યુવાનોનો સમાવેશ કરી સેનાને મજબૂત બનાવવા માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને એલડી એન્જિનિયરિંગ ખાતે આ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રદર્શનમાં ટાટા મિલાન ફાયરિંગ પોસ્ટ એલએફજી અને કમાન્ડ રૂમ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા। 2 દિવસીય યોજાયેલા પ્રદર્શનમાં ભાવિ પેઢીને સેનાની ભવ્ય પરંપરાઓ, શૌર્ય, સામર્થ્ય અને જીવનશૈલી વિશે જાણકારી તેમજ નાના શસ્ત્રોથી લઈને મોટા સશસ્ત્ર વાહનો અને આર્ટિલરી સુધીના યુદ્ધના વિવિધ ઉપકરણ પ્રદર્શિત કર્યા હતા। ઉપરાંત લશ્કરી ઉપકરણોનું સંચાલન, સૈનિકના જીવનની એક દિવસની ઝાંખી, ઇન્ફેન્ટ્રી યુનિટનું કુક હાઉસ, ડમી ગ્રેનેડ લોબિંગ, ટ્રાન્સબોર્ડર પેટ્રોલ વ્હીકલ પર સવારી અને ભારતીય સેનામાં કારકિર્દીના વિકલ્પો પર માહિતી આપવામાં આવી હતી। સાથે ટ્રાન્સબોર્ડર પેટ્રોલિંગ, આધુનિક વિસ્ફોરણોને નિષ્ક્રિય કરવા, પરમાણુ જૈવિક રાસાયણિક શસ્ત્ર, ઇન્ફેન્ટ્રી મોર્ટાર્સની મોક ડ્રીલ, મેડિકલ કેમ્પ, આર્ટિલરી ફિલ્ડ ગન પર ગન ડ્રીલ, સ્પોર્ટ્સ અને ઓલિમ્પિક કોર્નર પર માહિતી આપવામાં આવી હતી। भारतीय सेना को सक्षम करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट अपना पूरा योगदान करती है और देशवासियों की तरफ से सेना केवल एक एक्सपेक्टेशन रखती है, वो ये है कि सैनिक को कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत चाहिए। वो केवल एक है जो देश प्रेम, अपने राष्ट्र के लिए और देशवासियों का प्यार और उनकी आंखों में एक सैनिक के लिए इज्जत, यही एक चीज है जो सेना को मजबूत करे। आज रडार से तेरी बात करशु बजरंग भाई मातो साथे। बजरंग जी बताइए कि किस तरीके से इसका उपयोग होता है, किस तरीके से दुश्मन पर नजर रखी जाती है। सर ये हम इसमें इस टाटा के ऊपर में ये हाइड्रोलिक से ये ऑपरेट होता है। इसे हम ये 17 मीटर का मास्ट है, हम इसमें रडार फिट कर सकते हैं और रडार इसमें 50 मीटर से 60 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। हम लाइन ऑफ साइट क्लियर हमें ग्राउंड रोड में नहीं मिल पाता है, इसलिए हम इसको मास्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं। और इसमें साथ ही इसमें लोरस भी इसमें फिट करते हैं, जो इसका नाइट कैमरा, डे कैमरा दोनों इसमें फिट होता है। टाटा मास्ट के लिए अभी जो राजस्थान का इलाका है, ये गुजरात का इलाका है, पंजाब का इलाका है, यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। कैमरामैन मुकेश टोडिया साथे आशुतोष उपाध्याय, संदेश न्यूज अहमदाबाद। ये है मिलान फायरिंग पोस्ट है, इस पे ऊपर मिलान मिसाइल का फायर हो सकता है। इसका रेंज है 2 किलोमीटर है। ये दिन के टाइम में, रात के टाइम में, 2 टाइम में इस्तेमाल कर सकता है। इसके ऊपर मेरा नाइट के लिए मेरा नाइट साइट लगा हुआ है। इसको ये गैस बॉटल और निकल केडियम बैटरी से चलता है। ये इसका रेंज है रात में 4 किलोमीटर है। ये 2 किलोमीटर तक दुश्मन रेंज में आने देके उस समय फायर करते हैं। ये वायर गाइडेड होने के नाते मूव करते हुए टैंक पे आसानी से फायर करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो आ મિલાન ફાયરિંગ પોસ્ટ છે જે દુશ્મનનો ટેન્ક માટે ઉપયોગ થાય છે, ખાસ કરીને નાઇટ અને ડે બંનેમાં આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને દુશ્મનને નિશાન બનાવવામાં આવે છે। કેમેરામેન મુકેશ ટોડિયા સાથે આશુતોષ ઉપાધ્યાય, સંદેશ ન્યૂઝ અમદાવાદ। દુશ્મન પર વાર કરવા માટે લાઇટ ફિલિંગ ગનનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। મારી પાછળ તમે જોઈ શકો છો કે જે લાઇટ ફિલિંગ ગન છે, જે 17 કિલોમીટરનો તેની રેન્જ છે। ખાસ કરીને કારગિલ જેવા યુદ્ધમાં પણ આ ગનનો ખાસ કરીને ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। શું છે આની ખાસ ખાસિયતો, તેના વિશે જાણીશું दारासिंह भाई। दारासिंह जी, किस तरीके से ये काम करता है, क्या रेंज है उसकी और कहाँ कहीं पे ये यूज किया गया अब तक? ये सर्वप्रथम मैंने कारगिल अंदर यूज किया था इसको। ये कारगिल अंदर यूज किया, उसके बाद हम डिजर्ट एरिया में, राजस्थान वगैरह में फायर करने प्रैक्टिस के लिए जाते हैं करके। और इसका रेंज है 17 किलोमीटर 200 मीटर है। कैमरामैन मुकेश टोडिया साथे आशुतोष उपाध्याय, संदेश न्यूज अमदावाद। દેશમાં જ્યાં પણ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ હોય ત્યાં કમાન્ડ અને કંટ્રોલ રૂમનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે। નો યોર આર્મી કાર્યક્રમમાં પણ આ જ પ્રકારનો એક કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો આ વિશાળ જે કંટ્રોલ રૂમ છે તે અહીંયા બનાવવામાં આવ્યો છે। જ્યાં પણ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ હોય ત્યાંનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે અને તમામ જે યુદ્ધનું કંટ્રોલિંગ છે ત્યાં કમાન્ડ અને કંટ્રોલ રૂમથી કરવામાં આવે છે। અને ખાસ વાત કરવામાં આવે તો આ જે કમાન્ડનો રૂમ છે તેમાં એક ટ્રકની અંદર બનાવવામાં આવ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો એક ટ્રક છે, તેમાં જે સમગ્ર
જે કંટ્રોલ રૂમ છે તેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આટલો મોટો જે કંટ્રોલ રૂમ છે તે એક ટ્રકની અંદર બનાવવામાં આવ્યો છે. વિધિન 30 મિનિટ્સમાં આ જે રૂમ છે તેને નિર્માણ કરી દેવામાં આવે છે. ઉપરાંત એને જ્યાં પણ પરિસ્થિતિ બદલાય ત્યાં તરત જ એને ફોલ્ડ કરીને અન્યથા લઈ જવામાં આવે છે. તમામે તમામ જે મીટિંગ્સ થાય છે કમાન્ડોની તેની અંદર થાય છે અને જે પણ આદેશ આપવામાં હોય છે તેની અંદરથી આપવામાં આવે છે. હાલમાં તમે જોઈ શકો છો જે કમાન્ડન્ટ છે તે બ્રીફિંગ કરી રહ્યો છે કે ક્યાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે અને ક્યાં આપણે એટેક કરવાનો છે. કેમેરામેન મુકેશ ડોડિયા સાથે આશુતોષ ઉપાધ્યાય, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. ભારતીય સેના દ્વારા અમદાવાદ એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના પ્રાંગણમાં નો યોર આર્મી થીમ પર 2 દિવસીય પ્રદર્શન યોજાનાર છે. 19 અને 20 ઓગસ્ટ દરમિયાન પ્રદર્શનમાં ભારતીય સેનાની ગોલ્ડન કટાર ડિવિઝન 70માં સ્વતંત્રતા દિનની ઉજવણી કરીને પોતાનું શૌર્ય પ્રદર્શિત કરશે. આર્મી કેમ્પ ગુજરાતની યુવા પેઢીને સૈનિક બનાવવા માટે પ્રેરિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આ 2 દિવસ દરમિયાન આપણા દેશની ભવિષ્યની પેઢીઓને ભારતીય સેનાની ભવ્ય પરંપરાઓ, શૌર્ય, સામર્થ્ય અને જીવનશૈલી વિશે જાણકારી આપવામાં આવશે. તો 2 દિવસની ઇવેન્ટમાં 90 મિનિટમાં શોમાં લાઈફ પાઇપ બેન્ડ પરફોર્મન્સ, માર્શલ આર્ટ્સ ડિસ્પ્લે અને લાઈફ ઇન્ફેન્ટ્રી અસોલ્ટ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. તો ગત વર્ષે સારો પ્રતિસાદ મળ્યા બાદ ભારતીય સેનામાં સૈનિકો અને ઉપકરણોની ક્ષમતા વધારવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, જેથી આ પ્રદર્શન યોજી રાજ્યમાં ફેલાયેલ લશ્કરી ટુકડીઓ અને ઉપકરણને ગોલ્ડન કટાર ડિવિઝનના વિવિધ એકમમાંથી મેળવવામાં આવ્યા છે, જે અંગે આ 2 દિવસીય કાર્યક્રમમાં માહિતી આપવામાં આવશે. नो योर आर्मी, जिससे जो इसका टॉपिक या जो इसका हेडिंग है उसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये भारतीय सेना की एक पहल है, जो कि बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे युवक हैं, उनके लिए हम लोग जो हैं ये सेना ने अपना ऑर्गेनाइज किया है, ताकि हमारे युवक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, देखें और उनको अपनी सेना के बारे में, जो कि भारत का एक मुख्य स्तंभ है, पिलर है स्ट्रेंथ का, उसके बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी तो मैं आप लोगों के माध्यम से ગોલ્ડન કટાર દ્વારા આયોજિત નો યોર આર્મી કાર્યક્રમમાં હથિયારોનું પ્રદર્શન રાખવામાં આવ્યું છે. હથિયારો વિશે જાણકારી આપવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે અનિલ માન. વાત કરશું અનિલ માન સાથે. जी अनिल जी, ये बताइए ये कौन सा हथियार है और किस प्रकार से इसका यूज होता है? साहिबान, इस इक्विपमेंट को मिलान फायरिंग पोस्ट के नाम से जाना जाता है. ये फ्रांस का बना हुआ है, जो कि सर्वप्रथम 1983 के अंदर भारतीय थल सेना की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड की 70 गार्ड के अंदर इस्तेमाल में लाया गया. इस मिलान फायरिंग पोस्ट के द्वारा मिलान मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, जिसका रेंज 2 किलोमीटर है, जो कि आगे का इलाका ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिन के समय लोकलाइजर का बंदोबस्त किया गया, साथ ही रात के समय मिरर नाइट साइट का बंदोबस्त किया गया, जो कि थर्मल इमेज के सिद्धांत पे काम करती है. मिरर नाइट साइट के अंदर लगे इक्विपमेंट को ठंडा करने के लिए गैस बोतल का बंदोबस्त किया गया, साथ ही इसे पावर सप्लाई देने के लिए थर्मल बैटरी का बंदोबस्त किया गया. जी मिश्रा जी, ये क्या इक्विपमेंट है और किस प्रकार से ये काम करता है? ये बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार है, जो कि मीडियम रेंज का है. हमारी सेना में 3 प्रकार के रडार हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और हाई रेंज. तो हमारे पास में मीडियम रेंज का रडार है, जिसका डिटेक्शन रेंज 40 किलोमीटर है. ये पल्स डोपलर के सिद्धांत पर काम करता है. जी प्रधान जी, ये बताइए कि ये जो वीडियो इक्विपमेंट है वो किस प्रकार से काम करते हैं सेना में? दुश्मन के मूविंग तथा स्टैटिक टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए लाया गया है. इसका निर्माण इजराइल ने किया है. ये दिन और रात के समय दुश्मन के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है. जी संतोष जी, ये बताइए कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा रहता है सेना में, किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है? जो भारत BEL कंपनी के रेडियो सेट्स यूज होते हैं, उसमें HF, VHF, UHF इस टाइप के कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसीज रेंज के रेडियो सेट यूज किए जाते हैं. ये हमारे पास जो है रेडियो सेट VHF स्टार्स भी Mark 2, जिसका कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी रेंज जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है. इसके अंदर यूज होने वाला एंटेना है, जो कम्युनिकेशन रेंज बढ़ाने के लिए वगैरह हम यूज़ करते हैं. टेप, वीप एंटेना, GPA एंटेना, जिसका कम्युनिकेशन रेंज 25 किलोमीटर तक, मतलब फिजिकली मतलब टेरेन के ऊपर डिपेंड रहता है. 25 किलोमीटर तक रेंज है इसका VHF सेट का. इसका कम्युनिकेशन रेंज रिपीटर स्टेशन लगा के बढ़ा भी सकते हैं. ये कॉम्पैक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है रेडियो सेट VHF के. હા, ભારતીય સેનાની કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ કે કોઈ પણ પ્રકારની હરકત જો સેનાના જે સરહદ વિસ્તાર છે ત્યાં કોઈ પણ દુશ્મનની હરકત દેખાય તો તાત્કાલિક તેઓ પોતાના રડારમાં તેને કેચ કરી શકે છે. કેમેરામેન એસપી શર્મા સાથે ગૌરવ પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. અમદાવાદની એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખાતે આર્મી દ્વારા નો યોર આર્મી નામના 2 દિવસીય પ્રદર્શનનું આયોજન કરાયું છે,
જેમાં સેનામાં વપરાતા હથિયારો અને કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી સહિતના સાધનોનું નિદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભારતીય સેના દ્વારા સેના વિશે લોકો જાગૃત થાય એના માટે અમદાવાદમાં 2 દિવસીય નો યોર આર્મી નામનો એક કેમ્પ યોજાયો છે. અમદાવાદના એલડી એન્જિનિયરિંગના ગ્રાઉન્ડ ખાતે આ કેમ્પ 2 દિવસ યોજાનાર છે, જેમાં ભારતીય સેનામાં જે હથિયારોનો ઉપયોગ થાય છે તે હથિયારોનું ડિસ્પ્લે કરવામાં આવ્યું છે. જેની માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે फैजान खान के जो जम्मू राइफलमंत्री है. बात करिए फैजान खान साथ. जी फैजान जी, ये बताइए जो डिस्प्ले में हथियार रखे हुए हैं ये कौन कौन से वेपन है और किस प्रकार की इसका यूज होता है? ओके सर ये 5.56 mm इंसास राइफल है जो कि एक पर्सनल वेपन है, जवान का एक पर्सनल वेपन है. इससे हम 4 प्रकार का अम्युनिशन फायर कर सकते हैं और दुश्मन की इन्फेंट्री के बरखिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाता है. 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये मेड इन इंडिया है. इससे हम 4 प्रकार का अम्युनिशन फायर करते हैं. ये भी इंसास परिवार के ही ग्रुप से लिया गया है. ये 5.56 mm लाइट मशीन गन है. ये इसी का वर्जन है. अगर ये लड़ाई के दौरान कुछ इसके अंदर फॉल्ट हो जाता है तो इसके पुर्जे इसमें डालकर हम इसको चला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक हथियार है. इसी की अपेक्षा हम इन दोनों को एक साथ एक पुर्जों के साथ बनाया गया है. 7.62 mm LMG जो कि ये पुराना वर्जन है, इंडियन आर्मी में पहले से रखा गया था, लेकिन इसमें वेपन में रुकावट ज़्यादा पड़ती थी. इसी को बदली कर 5.56 mm इंसास LMG को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है. ये 7.62 mm राइफल AK-47 है जो कि मेडन रशिया से तैयार किया गया है. ये भी एक दुश्मन की पैदल सेना के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाता है. इसका रेंज भी हमारे 5.56 mm इंसास राइफल की तरह 400 मीटर ही है. ये 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, जिससे हम दुश्मन के VIP को मारने के लिए, इससे हम ज्यादा रेंज पर जो दुश्मन होता है उसको आराम से हेड शूट करके बर्बाद कर सकते हैं. इससे हम 5 प्रकार का अम्युनिशन फायर करते हैं. ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट के बरखिलाफ और बी व्हीकल्स के बरखिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है. इसमें हम साइड लगाकर भी फायर कर सकते हैं. इसकी साइड लगाकर 1300 मीटर तक का रेंज हासिल हो सकता है. इससे हम सिर्फ सिंगल शॉट फायर कर सकते हैं. MP9 SMG साइलेंसर मशीन गन जो कि अभी इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है. ये भी एक लेटेस्ट वेपन है जो कि पहले 9 mm CMG की जगह पर लाया गया है. इसका साइक्लिक रेट ऑफ फायर ज्यादा होने के कारण तकरीबन 1100 राउंड पर मिनट इसका रैपिड फायर है और 5000 राउंड साइक्लिक रेट ऑफ फायर रखा गया है. इसके अंदर 2 प्रकार की मैगजीन आती है. सबसे पहले 15 राउंड की मैगजीन, दूसरी 30 राउंड की मैगजीन. इसमें क्या है, सेफ्टी कैच दोनों तरफ दिया गया है ताकि जो राइट और लेफ्ट हैंड दोनों हथियार को हैंडल करने वाले इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं. और क्या है, इसकी फोल्डेड बट है जो कि कैरी करने में आसान है. अगर दुश्मन के ज्यादा नजदीक क्लोज क्वार्टर बैटल में भी इसका आसानी से इस्तेमाल इंडियन आर्मी में किया जा सकता है. 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर जो कि हिंदुस्तान आर्मी में अभी ही शामिल किया गया है. इसका रेंज 400 मीटर है, क्योंकि एक जवान ग्रेनेड नंबर 36 हैंड ग्रेनेड जिसको ज्यादा से ज्यादा 25 से 35 मीटर ही थ्रो कर पाता था, लेकिन इसके आने से हम 400 मीटर दूर तक के दुश्मन को एम लेकर के एरिया वेपन होने के नाते अच्छे तरीके से बर्बाद कर सकते हैं. इससे हम 6 प्रकार का मिशन फायर करते हैं. ये मेड इन साउथ अफ्रीका है और इसमें साइड अलग तरीके की होने के कारण दोनों आंखों से खोल करके फायर किया जाता है. इसका एक्यूरेट एम्ड फायर है. ये क्या है, इसमें ग्रेनेडों को भरा जाता है और भरने के बाद इसमें 6 के 6 अलग प्रकार के ग्रेनेड भरकर आराम से 6 राउंड आराम से हम फायर कर सकते हैं. 84 mm रॉकेट लॉन्चर, ये क्या है, दुश्मन के टैंकों के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन क्या था, इंडियन आर्मी में इसको थोड़ा कैरी करना मुश्किल था और इससे हम सिर्फ 6 प्रकार का अम्युनिशन फायर कर सकते थे. लेकिन दुश्मन के टेक्निक बढ़ने के कारण दुश्मन ने अपने टैंकों की सेफ्टी के लिए उसमें ERA प्लेट लगाया.
तो उसी के साथ हमें दुश्मन के टैंक को बर्बाद करने के लिए दूसरे रॉकेट लॉन्चर की जरूरत पड़ी। तो मार्क 3 की जगह मार्क 2 को शामिल किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। ये है लाइट वेट, जिसका वजन मार्क 2 की अपेक्षा आधा है, और उससे हम 6 प्रकार का अम्युनिशन फायर करते थे, इससे हम 9 प्रकार का अम्युनिशन फायर कर सकते हैं, और दुश्मन के टैंक को 700 मीटर की दूरी पर आराम से ન્યુટ્રલાઇઝ किया जा सकता है। આ હતા ફૈઝાન ખાન અને રાજેન્દ્ર કુમાર કે જેમનું કહેવું છે કે આ હથિયારો હાલ ભારતીય સેનામાં ઉપયોગ થઈ રહ્યા છે। જે પ્રકારના હથિયારો હાલ ભારતીય સેનામાં છે એ પ્રકારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે ભારત દેશનું ભવિષ્ય સેનાના જવાનોના હાથમાં હાલ સુરક્ષિત છે। कैमरामैन एसपी शर्मा साथे गौरव पटेल, संदेश न्यूज, अहमदाबाद। जी मिश्रा जी, ये क्या इक्विपमेंट है और किस प्रकार से ये काम करता है? ये बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार है, जो कि मीडियम रेंज का है। हमारी सेना में 3 प्रकार के रडार हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और हाई रेंज। तो हमारे पास में मीडियम रेंज का रडार है, जिसका डिटेक्शन रेंज 40 किलोमीटर है। ये पल्स डॉपलर के सिद्धांत पर काम करता है। सिंगल वॉकिंग मैन को, मतलब एक सिंगल वॉकिंग मैन अगर हरकत करता है तो उसको 15 किलोमीटर की दूरी तक पकड़ता है। अगर ग्रुप ऑफ 5 मैन एंड अबव जो भी टुकड़ी घूम रही है उसको ये 18 किलोमीटर तक पकड़ता है। मूविंग तथा स्टैटिक टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए लाया गया है। इसका निर्माण इजराइल ने किया है। ये दिन और रात के समय दुश्मन के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ये 2 सब सिस्टम में काम करता है। एक है इसका ऑब्जर्वेशन सब सिस्टम और ये कंट्रोल सब सिस्टम है। ऑब्जर्वेशन सब सिस्टम में डे नाइट कैमरा और लेजर रेंज फाइटर्स लगाया गया है। साथ ही ये आपकी कंट्रोल सिस्टम से जो आपको दुश्मन के टारगेट डिस्प्ले विंडो में शो करता है। अगर आप इस टारगेट को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हो तो इसमें बीसीआर के बंदोबस्त भी किया गया है। કોઈપણ પ્રકારની હરકત જો સેનાના જે સરહદ વિસ્તાર છે ત્યાં કોઈપણ દુશ્મનની હરકત દેખાય તો તાત્કાલિક તેઓ પોતાના રડારમાં તેને કેચ કરી શકે છે। કેમેરામેન એસપી શર્મા સાથે ગૌરવ પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। ભારતીય સેના દ્વારા અમદાવાદ એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના પ્રાંગણમાં નો યોર આર્મી થીમ પર 2 દિવસીય પ્રદર્શન યોજાયું છે। 19 અને 20 ઓગસ્ટ દરમિયાન પ્રદર્શનમાં આર્મી કેમ્પ ગુજરાતની યુવા પેઢીને સૈનિક બનાવવા માટે પ્રેરિત પણ કરી રહ્યા છે। આ 2 દિવસ દરમિયાન આપણા દેશની ભાવિ પેઢીને ભારતીય સેનાની ભવ્ય પરંપરાઓ, શૌર્ય, સામર્થ્ય અને જીવનશૈલી વિશે જાણકારી મળી રહેશે। આ ઇવેન્ટમાં 90 મિનિટમાં શોમાં લાઈફ પાઇપ બેન્ડ પરફોર્મન્સ, માર્શલ આર્ટ્સ ડિસ્પ્લે અને લાઈફ ઇન્ફેન્ટ્રી અસોલ્ટ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે। તો ગત વર્ષે સારો પ્રતિસાદ મળ્યા બાદ ભારતીય સેનામાં સૈનિકો અને ઉપકરણોની ક્ષમતા વધારવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, જેથી આવા પ્રદર્શન યોજી રાજ્યમાં ફેલાયેલી લશ્કરી ટુકડીઓ અને ઉપકરણને ગોલ્ડન કટાર ડિવિઝનના વિવિધ એકમમાંથી મેળવવામાં આવ્યા છે। ભારતની સરહદો પર રહેલા દુર્ગમ વિસ્તારોમાં સેના દેશની સેવા કરી રહી છે અને ત્યાં કમ્યુનિકેશનનો અભાવ ખૂબ જ છે, પરંતુ કોઈપણ સંજોગોમાં દુશ્મન દેશ ઉપર આક્રમણ કરે અથવા તો દેશ ઉપર આક્રમણ કરવાની કોઈ હિલચાલ કરે તો તેને કઈ રીતે પકડવો તે માટે આધુનિક કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ ભારતીય સેના પાસે વસાવેલી છે। જેના અંગે વાત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે સતપાલ સિંહ। વાત કરીશું सतपाल सिंह साथ। जी सतपाल सिंह जी, ये बताइए किस प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है? जैसे आपके पीछे जो 4 बड़े बड़े व्हीकल लगे हुए हैं, कैसे काम करते हैं? कैसे काम करता है, जैसे हम लोग बॉर्डर एरिया पे मूविंग करते हैं तो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं होता, तो हम अपनी गाड़ी के साथ मूव करते हैं। इसमें पूरा हमारा सिस्टम अंदर सेटअप है, वहाँ जाके गाड़ी को ऑन करना है और पूरा सेटअप हम कर देते हैं। फिर मोबाइल सिस्टम, हमारा रेडियो, डाटा सब इन्फेंट्री जो मूव करती है तो उसको हमको पीछे बैकबोन में पीछे बात करवाना पड़ता है, तो ये सब इस व्हीकल के थ्रू हम लोग करवा पाते हैं। और आपके पीछे एक बड़ा खंबे वाला व्हीकल, हाँ, ये राडार सिस्टम है। जब दुश्मन को मतलब हमें ऑब्जर्व करना है, उसका इक्विपमेंट्स को मतलब जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को ब्लॉक करना है या उसको राडार मतलब उसकी रेंज में आ जाएगा तो तुरंत उसको फ्रिक्वेंसी जाम करने के काम आता है। कितनी रेंज होती है ये जो आपने बात की 2 व्हीकल की, अप्रोक्सीमेट जो फर्स्ट व्हीकल है ये हमारा क्या है, मोबाइल सिस्टम है। ओमनी डायरेक्शनल में ये 40 किलोमीटर तक मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन आपको नेटवर्क आएगा विदाउट वायरलेस। और जो ये वाला व्हीकल है ये 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट होता है। जो 2 व्हीकल होंगे दोनों के बीच में, ये भी 40 किलोमीटर है लेकिन 2 व्हीकल के बीच में होगा ये कम्युनिकेशन। और जो रडार सिस्टम आपके पीछे खड़ा है वो भी सेम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक रेंज। जैसे हमारे को हाइट मिलेगी तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं रेंज, लेकिन मिनिमम 30 किलोमीटर तक हमारा रेंज रहता है।
તો આ હતા સતપાલસિંહ કે જેમનું કહેવું છે કે બોર્ડર વિસ્તારમાં 40 થી 50 કિલોમીટર રેન્જમાં કોઈ પણ પ્રકારની દુશ્મનની જો હરકત હોય તો તેઓ મોબાઈલ કમ્યુનિકેશન થકી અથવા તો રડાર થકી તેને કેપ્ચર કરી શકે છે। કેમેરામેન એસપી શર્મા સાથે ગૌરવ પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। ભારત દેશની કેટલીક સરહદ ઉપર રણ આવેલું છે અને રણથી બીજા દેશ સાથે તે સરહદ જોડાયેલી છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક રણમાં કયા પ્રકારના હથિયારોનો ઉપયોગ થાય છે, કયા પ્રકારના વાહનોનો ઉપયોગ થાય છે તે સમજાવવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે सूबेदार पन्नालाल। बात करશું पन्नालाल साथे। जी पन्नालाल, ये बताइए कि किस प्रकार के व्हीकल का यूज होता है, खास करके डेजर्ट में आपने जो अभी 3 प्रकार की जीप यहाँ पे खड़े, क्या है ये और किस प्रकार यूज होता है? ये सर, ये हमारा व्हीकल टीवीपी व्हीकल है। इससे हम दुश्मन के इलाके में जाकर के और खबरें हासिल करते हैं। दूसरा जो आप पीछे व्हीकल देख रहे हैं, ये हमारा रेकी व्हीकल है। इससे हम क्या करते हैं, जो दुश्मन के इलाके के अंदर और जो रेकी का काम करता है। और जो आप उसके अलावा जो एक व्हीकल और देख रहे हैं, ये तीसरा व्हीकल है। ये हमारा क्या है, एप्टर व्हीकल है, एप्टर टीवी व्हीकल है। इसे हम एप्टर के साथ में जा करके और दुश्मन की खबरें हासिल करते हैं। सर, आपने जी ये जो व्हीकल के बारे में बताया, कौन कौन से हथियार इसमें कैरी होते हैं और किस प्रकार से यूज होता है, कितने लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं? इसमें 4 आदमियों का क्रू होता है, जो कि एक ऑपरेटर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है और एक नेविगेटर होता है। इसको हम तकरीबन 108 घंटे के लिए सेल्फ कंटेन होता है। ये इसके अंदर इसकी कैपेबिलिटी डेजर्ट के अंदर तकरीबन 300 किलोमीटर तक ये चलता है और ये 108 घंटे के लिए पूरी टीम और पूरे क्रू मेंबर के साथ में सेल्फ कंटेन होता है, वेरी हार्ड स्केल के साथ। તો આ હતા सूबेदार पन्नालाल કે જેમણે જણાવ્યું કે કઈ રીતે આ 3 વ્હીકલ ડેઝર્ટમાં એટલે ખાસ કરીને રણ પ્રદેશમાં જ્યારે યુદ્ધની સ્થિતિ હોય ત્યારે સેનાની મદદમાં ઉપયોગમાં આવે છે। કેમેરામેન એસપી શર્મા સાથે ગૌરવ પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।